सो हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा द चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। सो ये आपके क्लास 9 की सीबीएसई बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है, तो पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके ऑथर के बारे में जान लेना चाहिए। तो इस चैप्टर के ऑथर है सुधा मूर्ति जी। ठीक है, तो पहले हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो सुधा मूर्ति जी है कौन? हु इज सुधा मूर्ति? So Sudha Murty is a famous Indian author. Okay, she's a famous Indian author as well as she's an engineer, teacher, philanthropist and a social worker. Okay, she's an engineer, a teacher, a philanthropist and a social worker. ठीक है, लेकिन how she writes the stories, what is her way to write stories? Okay, so she is known for writing simple yet meaningful stories inspired by real life. Okay, so she writes stories which are inspired from real life. ठीक है, कि उनकी जिंदगी में ये ऐसे हादसे हो चुके हैं and she gets inspired from those incidents and she writes the stories. ठीक है बेटा, then important facts about her, she writes in both English and Kannada. So for your kind information, Sudha Murty ji comes from Kannada background. ठीक है, so she also writes stories in English and as well as Kannada. Okay, then her stories mostly focuses on human values, relationships, morality, simplicity and Indian culture. ठीक है, so उनकी जो stories है वो क्या show करती है, वो क्या दिखाती हैं? Shows human values. ठीक है, those shows human values. Then relationships like father to son, mother to daughter, grandparents to grandchildren, like that relationships, दोस्त का दोस्त के साथ. So then she shows morality. Okay, morality like moral consciousness. ठीक है, moral values. then simplicity, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं लिखती सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी का लिखने का स्टाइल बहुत ही सिंपल येट बहुत ही मीनिंगफुल होता है। ठीक है, सो शी राइट्स इन अ वेरी सिंपल मैनर। ओके, देन Indian culture, she represents Indian culture very nicely. Okay, it's a very plus point of her that she represents Indian culture very authentically. Okay beta, then what is her writing style? So her writing style is simple, emotional, realistic and easy to understand. Okay beta, उनका राइटिंग का स्टाइल कैसा है? ऑफ कोर्स जैसे है मैं तब से बोल रहा हूँ, सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ताकि क्या हो, सामने वाले रीडर को पढ़ के ज्यादा कुछ सोचना ना पड़े। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। देन इमोशनल है, वो क्या ना अपने स्टोरीज में एक इमोशनल टच लाती है, ताकि क्या हो, कनेक्ट कर पाए रीडर्स के साथ, ऑथर कनेक्ट कर पाए, इसीलिए शी राइट्स विद अ इमोशनल टच। देन रियलिस्टिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड, then her writing is easy to understand and it is realistic, it is based on real incidents, so it is realistic. Okay beta, चलो आगे बढ़ते हैं। this is all about Sudha Murty ji. ठीक है, so let's move on. Then let's begin with the chapter, introduction to the chapter. So let's begin with the chapter how I taught my grandmother to read. chapter का नाम क्या है? how I taught my grandmother to read. ठीक है, so this chapter is a beautiful autobiographical story written by Sudha Murty. The chapter is not just about reading and writing, it is about determination, self-respect, independence, emotional bonding between generations and the true value of education. चलो बेटा, अब हम सब इन चीजों को एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो स्टोरी है ना, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इट इज अ ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी। ठीक है, अब व्हाट इज ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी? दिस स्टोरी इज रिटन फ्रॉम द इंसिडेंट्स ऑफ सुधा मूर्ति बाय ऑफ सेल्फ। ठीक है, कि इस स्टोरी में जो इंसिडेंट्स का बात किया जा रहा है वो उनकी लाइफ में सच में हो चुका है एंड शी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज इंसिडेंट्स एंड शी हैज रिटन द स्टोरी। ओके, देन दिस चैप्टर ऑल्सो shows the emotional bonding between her grandmother and Sudha Murty. Then this chapter shows determination, self respect and independence. determination, ठीक है, किसी भी चीज को करने का determination, self respect, अपने लिए respect and इंडिपेंडेंस। अच्छा, यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब पता है? आजादी, मतलब वो वाला आजादी नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पे आजादी मतलब लिटरल इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब कि इफ समवन इज एजुकेटेड, इफ समवन इज लिटरेट, देन ही और शी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और अगर हम लोग को बात ही ना करने आए, लिखना ना आए, पढ़ना ना आए, देन वी आर नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर उसी सारे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी टीचेस अस दैट education is not just limited by age. Anyone can learn if they truly want to. ठीक है, ये चैप्टर में क्या रिप्रेजेंट करता है कि एजुकेशन का या फिर लिटरेट होने का कोई भी एज नहीं होता है। एजुकेशन का या फिर पढ़ाई लिखाई का कोई एज नहीं होता है। इंसान कोई भी एज में, कैसे भी एज में पढ़ा लिखा हो सकता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एज, एंड anyone can learn if they truly want to। ठीक है, आप लोग या मैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन if we truly want to, अगर हम लोग को सच में वो चीज करना है, अगर हम लोग को हासिल करना है, if we truly want that, then we will go for it, no matter our age, no matter our circumstance, nothing। if we truly want, then we can do it। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, then part 1। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन पार्ट्स, सो हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सो फर्स्ट पार्ट, द ग्रैंड मदर्स लव फॉर स्टोरीज। ठीक है, द ग्रैंड मदर्स लव फॉर स्टोरीज। ठीक है, अब देखो सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंड मदर थी ना, उनको स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। बेसिकली स्टोरीज को सुनना बहुत पसंद था, बिकॉज आई विल जस्ट टेल यू, बिकॉज सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर जो थी, शी वॉज illiterate। ठीक है, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली टाइम्स लाइक 1930s या 20s के टाइम का बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम में ना इंडिया में एजुकेशन उतना ज्यादा था नहीं। ठीक है, एंड स्पेशली नॉट फॉर वुमेन। तो एज वी कैन एक्सपेक्ट कि हर ग्रैंड मदर वॉज नॉट एट ऑल एजुकेटेड। ठीक है, तो उनको पढ़ना नहीं आता था, बट सुधा मूर्ति को पढ़ना आता था। सो व्हाट शी यूज्ड टू डू, वो उस बुक में से स्टोरीज पढ़ करके अपनी दादी माँ को सुनाती थी, और उनकी दादी माँ जो थी वो आराम से बैठ के बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांत तरीके से वो स्टोरीज सुनती थी। ठीक है, बहुत ही फोकस्ड वे में वो स्टोरीज सुनती थी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। The narrator tells us about her grandmother. Her grandmother was old. ठीक है, her grandmother was old, that is very obvious. Kind, loving and deeply interested in stories. ठीक है, उनकी ग्रैंडमदर का स्वभाव कैसा था? What was her character like? She was very old as expected. She was very kind also. ठीक है, वो बहुत ही दयालु थी। She was very kind. She was very loving. वो सबको बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार से मिलती थी, जुलती थी। ठीक है, a very loving and very kind lady. Okay, and deeply interested in stories. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, that she was deeply interested in stories. ठीक है, उनको कहानियां सुनना, कहानियां को समझना। ठीक है, पढ़ तो वो पाती थी नहीं, तो उनको कहानियां सुनना, कहानियां समझना उनको बहुत अच्छा लगता था। She was very interested on that. ठीक है, every week she waited for a Kannada magazine called Karmveer. ठीक है, every week she used to wait for a magazine known as Karmveer. ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ठीक है, उस टाइम पे ना बुक्स नहीं आते थे, उस टाइम पे मैगजीन्स आते थे। ठीक है, उन मैगजीन्स में एक स्टोरीज का अलग से पार्ट रहता था, जिन पार्ट में लाइक आजकल के टाइम में जैसे सीरियल्स होते थे ना, एपिसोड बाय एपिसोड देते हैं, उस टाइम पे क्या होता था कि मैगजीन में स्टोरीज आते थे। ठीक है, और उस स्टोरीज का एक पार्ट आता था एक हफ्ते में, फिर नेक्स्ट हफ्ते में नेक्स्ट पार्ट, देन नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट पार्ट, तो ऐसे आते रहते थे उस टाइम पे। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम पे सीरियल्स होते हैं कि आज एक दिखाया एपिसोड, देन नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट दिन, देन नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट दिन, वैसे उन टाइम पे होता था। ठीक है, मैगजीन्स में स्टोरीज आती थी। तो सुधा मूर्ति की जो ग्रैंडमदर थी, वो कौन से मैगजीन का वेट करती थी? कर्मवीर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये एकदम याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन का नाम क्या था? कर्मवीर। ठीक है, मैगजीन का नाम क्या था? कर्मवीर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैगजीन का नाम क्या था? कर्मवीर। एंड दैट मैगजीन यूज्ड टू कम एवरी वीक। ठीक है, एंड सुधा मूर्ति की जो ग्रैंडमदर थी, शी वाज वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दैट मैगजीन टू कम। ठीक है, इनसाइड दिस मैगजीन was a serial story named काशी यात्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैगजीन का नाम कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैगजीन, नेम ऑफ द मैगजीन क्या है? कर्मवीर।
और सेकंड उस मैगजीन में स्टोरी का नाम क्या है, काशी यात्री। ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मतलब दिमाग में डाल लो कि फर्स्ट मैगजीन का नाम क्या है, कर्मवीर, एंड स्टोरी का नाम क्या है, काशी यात्री। ठीक है, दिस इज अ सीरियल स्टोरी, दिस इज अ सीरियल स्टोरी। सीरियल स्टोरी मतलब क्या, जैसे मैं हम लोग को बोला कि एपिसोड बाय एपिसोड हर एक वीक आते रहता है। ठीक है, सो वो स्टोरी हर एक वीक मैगजीन में आते रहता था। ठीक है, देन काशी यात्री मीन्स जर्नी टू काशी। ठीक है, ऑब्वियसली काशी यात्री। ठीक है, काशी यात्री मतलब, काशी मतलब कौन सा जगह, वाराणसी में काशी, सबको पता है ये बात। ठीक है कि नहीं, वाराणसी में काशी भगवान शिव का जगह है कि नहीं। तो काशी यात्री मतलब जर्नी टू काशी। ठीक है, देन व्हाट इज अबाउट द स्टोरी, द स्टोरी वाज अबाउट एन ओल्ड वुमन who wished to visit Kashi before dying. This touched the grandmother emotionally because she herself was old and she connected deeply with the character. देखो बेटा, हर एक स्टोरी, हर एक मूवी, हर एक सीरीज जो हम लोग देखते हैं ना, उसमें मेन एलिमेंट पता है क्या होता है कि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ। ठीक है, वी फील इट वेरी रिलेटेबल व्हेन वी रीड और व्हेन वी वॉच मूवीज और बुक्स। ठीक है, so whenever we watch movies या whenever we watch series या whenever we read books, हम लोग ना कोई भी एक कैरेक्टर के साथ बहुत ही डीपली रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग को लगता है कि वाह ये बुक तो बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसके कैरेक्टर के साथ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे हम सबके लाइफ में कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई मूवी जरूर होती है। तो ऐसे ही सुधा मूर्ति की जो ग्रैंडमदर थी, वो जो स्टोरी पढ़ती थी जिसका नाम था काशी यात्री, उस बुक में या उस स्टोरी में एक कैरेक्टर थी, एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, उस कैरेक्टर, वो बूढ़ी औरत का कैरेक्टर थी। ठीक है, जो कि काशी जाना चाहती थी बिफोर डाइंग। ठीक है, जो कि काशी जाना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में लोग अपनी अंतिम इच्छाएं पूरी करने जाते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि वाराणसी में इंसान अपनी आखिरी इच्छा, अपनी आखिरी सांसें वाराणसी में ही गिनने जाती हैं। ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ फायदा होता है। सो ऐसे ही ये जो बूढ़ी औरत थी, इनको भी मरने से पहले एक बार काशी जाना था। ठीक है, सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ वुमन गोइंग टू काशी। ठीक है, काशी यात्री इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन गोइंग टू काशी बिफोर डाइंग। ठीक है, तो इस स्टोरी को सुधा मूर्ति की जो ग्रैंडमदर थी, सुधा मूर्ति की ग्रैंडमदर बहुत ही पसंद करती थी। क्यों, क्योंकि शी हरसेल्फ thought she was relatable with that character, she felt relatable with that character. ठीक है, this touched the grandmother emotionally because she has herself was old. ठीक है, and she connected deeply with the character because she was old. ठीक है, वो कैरेक्टर में भी वो ओल्ड वुमेन थी और इसमें सुधा मूर्ति की ग्रैंडमदर भी ओल्ड है, वो एक कनेक्शन का रीजन बनता है। एंड सेकंड रीजन क्या बनता है कि शी कनेक्टेड डीपली विद द कैरेक्टर, क्योंकि उनको भी मतलब कहीं ना कहीं काशी के बारे में वो भी सोचती थी। बिफोर डाइंग शी वुड लव टू गो देयर। ठीक है, तो इसीलिए सुधा मूर्ति की जो ग्रैंडमदर थी, शी वॉज फीलिंग वेरी रिलेटेबल विद दैट कैरेक्टर ऑफ काशी यात्री। ठीक है बेटा, इसीलिए उनको वो बुक बहुत ज्यादा पसंद था, वो स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, एक बार आप लोग इस पूरे इसको देख लो। ठीक है, पूरे स्लाइड को देख लो अच्छे से, एक बार पूरे स्लाइड को देख लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड्स में ना क्या है कि वो काशी यात्री के बारे में बताया गया है, देन सुधा मूर्ति जी की ग्रैंडमदर के बारे में बताया गया है, तो एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, एक बार देख लो ये पूरा स्लाइड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो। देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। द ग्रैंडमदर वाज इलिटरेट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन बेसिक, कैसे बोलूं, मतलब दिस इज द मेन बेस ऑफ द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी का मेन लॉजिक ही यही है कि द ग्रैंडमदर वाज इलिटरेट। उसकी जो ग्रैंडमदर थी, सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंडमदर थी, शी वाज इलिटरेट। ठीक है, शी वाज इलिटरेट। ओके, सो इस स्टोरी का बेस लॉजिक ही यही है। ठीक है, दिस मीन्स शी कुड नॉट रीड और राइट। ठीक है, इलिटरेट का मतलब ही वही होता है जो ना पढ़ सके ना बोल सके। ठीक है, जो ना लिख सके, बेसिकली जो ना लिख सके ना पढ़ सके।
तो इलिटरेट का मतलब ये होता है, तो शी वॉज इलिटरेट, ठीक है। देन एवरी वीक द ग्रैंड डॉटर हैड टू रीड द स्टोरी अलाउड टू हर, ठीक है। अब वो जो काशी यात्री जो स्टोरी आती थी, ठीक है, कर्मवीर मैगजीन में, वो सुधा मूर्ति क्या करती थी कि वो अपने ग्रैंड मदर के बगल में बैठती थी और जोर जोर से उनकी ग्रैंड मदर को पढ़ के सुनाती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि उसकी ग्रैंड मदर जो पढ़ नहीं सकती थी, स्टिल शी कुड हियर द स्टोरी एंड शी कुड एंजॉय द स्टोरी, ठीक है। सो दिस शोज हर ग्रैंड डॉटर्स लव टुवर्ड्स हर ग्रैंड मदर, ठीक है, कि वो हर हफ्ते उस स्टोरी को बैठ के जोर जोर से अपने ग्रैंड मदर को पढ़ के सुनाती थी, ठीक है। देन द ग्रैंड मदर लिसन्ड केयरफुली एंड इमोशनली, उसकी ग्रैंड मदर जो थी बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही केयरफुली वो स्टोरी सुनती थी, ठीक है, ताकि कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए, कोई भी लॉजिक मिस ना हो जाए, ठीक है। सो बहुत ही केयरफुली वो स्टोरी सुनती थी, बहुत इमोशनली वो स्टोरी सुनती थी, लाइक महसूस करती थी, उस कैरेक्टर के साथ खुद को महसूस करती थी कि क्या हो रहा है स्टोरी में, ठीक है। देन दिस पार्ट शोज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ये जो पार्ट है, जिस पार्ट में सुधा मूर्ति जी अपनी ग्रैंड मदर को कहानियां सुना रही हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या दिखाता है कि एक ग्रैंड डॉटर का अपनी ग्रैंड मदर के टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स अफेक्शन, ठीक है, ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर रूटीन बिकेम रीडिंग टुगेदर, डिस्कसिंग द स्टोरी, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है। तो ये उनका रूटीन बन चुका था, क्योंकि हर हफ्ते वो ये करती थी, क्या करती थी कि जैसे वो कर्मवीर मैगजीन आता था तो वो मैगजीन वो पढ़ के सुनाती थी, वो काशी यात्री वो स्टोरी सुधा मूर्ति अपने ग्रैंड मदर को सुनाती थी, ठीक है। देन डिस्कसिंग द स्टोरी, कि वो लोग डिस्कस करते थे, आप लोग के घर पे मम्मियाँ या मौसी या कोई भी हो तो वो लोग डिस्कस करते हैं ना कि अरे तुमको पता है ये सीरियल में ये हुआ, अगले एपिसोड में ना ये होने वाला है, ठीक है, अनुपमा यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, तो ऐसा ऐसा सब कुछ करते हैं ना। तो वैसे ही इस स्टोरी के बारे में भी मतलब डिस्कस करते हैं, ठीक है, सुधा मूर्ति और उनकी ग्रैंड मदर कि आगे क्या होने वाला है, आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है। देन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, देन दे यूज्ड टू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस शोज लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप एंड इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। ये चार चीजें शो करता है। कौन सी चार चीजें? फर्स्ट इज लव, लव किसका? ग्रैंड मदर का ग्रैंड डॉटर के टुवर्ड्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ग्रैंड मदर का ग्रैंड डॉटर के टुवर्ड्स। देन अफेक्शन, अफेक्शन मतलब क्या है? किसी के लिए कुछ करना, ठीक है, प्यार से कुछ करना। तो ग्रैंड डॉटर क्या करती थी? वो स्टोरीज को आराम से बैठ के सुनाती थी और ग्रैंड मदर पेशेंटली केयरफुली वो स्टोरी सुनती थी, ठीक है। देन कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मतलब दोनों साथ में तालमेल बैठा के चलते थे, ठीक है, कि ये स्टोरीज सुनाती थी, वो स्टोरीज सुनती थी। देन इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन एज इन जैसे जैसे वो स्टोरीज सुनाती थी, जैसे जैसे वो स्टोरीज पढ़ती थी, वैसे वैसे वो लोग अपने अंदर एक इमोशनल बॉन्डिंग प्रिपेयर करते थे, इमोशनल कनेक्शन बनाते थे दोनों एक दूसरे के बीच, ठीक है, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया सबको? केयरफुली सबको ये वाला पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब आता है पार्ट 2, द टर्निंग पॉइंट। अब आता है पार्ट 2, द टर्निंग पॉइंट, कि अब आने वाला है एक टर्निंग पॉइंट हमारे स्टोरी में, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या है? चलो पता करते हैं टर्निंग पॉइंट क्या है। One day the narrator went to a wedding in another village. She stayed there for a week, ठीक है। यहां पे नरेटर मतलब कौन? हाँ जी, नरेटर मतलब कौन बेटा? नरेटर मतलब एग्जैक्टली सुधा मूर्ति, ठीक है। सो इस जगह पे नरेटर मतलब कौन? जैसे कि आप सबने गेस कर ही लिया है, सुधा मूर्ति जी, ठीक है। सो द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग इन अनदर विलेज. शी स्टेड देयर फॉर अ वीक. ड्यूरिंग हर एब्सेंस द एपिसोड ऑफ काशी यात्री वॉज पब्लिश्ड, बट द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड. अरे अब आ गई गलती, ठीक है, अब हो गई गलती, अब आता है टर्निंग पॉइंट. कैसे? देखो समझो. द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग इन अनदर विलेज, ठीक है. सुधा मूर्ति जी किसी दूसरे विलेज में एक वेडिंग अटेंड करने जाती है एंड शी स्टेड देयर फॉर अ वीक.
वो क्या एक हफ्ते के लिए वहां स्टे करती है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को पता है कि काशी यात्री क्या हर एक वीक में एक एक करके बुक, एक एक करके एपिसोड पब्लिश करता है। ठीक है, काशी यात्री हर एक एपिसोड एक एक वीक में पब्लिश करता है। सो शी स्टेड देयर फॉर अ वीक। अब क्या होता है कि द न्यू एपिसोड ऑफ काशी यात्री वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, काशी यात्री का जो न्यू एपिसोड था वो क्या होता है, वो पब्लिश हो चुका होता है। एंड शी कुड नॉट रीड टू हर ग्रैंड मदर, क्योंकि वो थी नहीं अपने गांव में। सो द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड। सो सैड कि उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो पढ़ नहीं पाई वो स्टोरी, क्योंकि एज वी ऑल नो शी इज इलिटरेट, शी कांट रीड। सो क्या करती है, शी इज हेल्पलेस, है कि नहीं? शी इज हेल्पलेस, शी कैन नॉट रीड एंड शी कैन नॉट टेल एनीवन आल्सो टू रीड हर दैट स्टोरी। सो देन this became a life changing moment. So this became a life changing moment. देखो बेटा, हम सबकी जिंदगी में ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट तभी आता है जब हम लोग को कुछ हिट करे। ठीक है, जब हम लोग को कुछ ट्रूली मतलब बहुत जोर से हिट करे, कोई इंसिडेंट या कोई इंसान जब हम लोग को हिट करे, तब जाके आता है हम लोग की जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट। then we get determined to do something, to achieve something, then we achieve it. ठीक है, सो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या था कि सुधा मूर्ति जी अपने गांव में थी नहीं। सो अपने ग्रैंड मदर को वो ग्रैंड मदर का सबसे फेवरेट स्टोरी काशी यात्री वो पढ़ के सुना नहीं पाई, एंड हर ग्रैंड मदर वाज हर्ट ऑब्वियसली। सो दैट वाज द टाइम शी वाज डिटरमाइंड टू डू व्हाट? द ग्रैंड मदर ट्राइड टू नो द स्टोरी, looked helplessly at the magazine, but she could not understand anything. ठीक है, she realized illiteracy is a kind of helplessness. ठीक है, कि उनको क्या पता चला कि illiteracy is a kind of helplessness, because she looked at the magazine, she tried to read, but as we all know she could not recognize the alphabets. ठीक है, उनका अल्फाबेट्स पढ़ना नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे पढ़े क्या पढ़े। ठीक है, सो शी वाज लुकिंग हेल्पलेस। ठीक है, वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो हेल्पलेस है, उनको मदद करने के लिए, उनका मदद करने के लिए कोई नहीं है, बट कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एज एक्सपेक्टेड। वो देख तो रही थी मैगजीन को बट कुछ समझ नहीं पा रही थी। शी रियलाइज्ड इलिटरेसी इज अ काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक है, शी रियलाइज्ड के इलिटरेसी इज अ काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस, कि अगर आप इलिटरेट हो तो आप हेल्पलेस हो, क्योंकि अगर आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, देन आपकी हेल्प दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सो व्हाट डज दिस स्लाइड शोज अस के इलिटरेसी इज अ काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक है बेटा, ये स्लाइड समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, द ग्रैंड मदर अंडरस्टूड शी डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन अदर्स। ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर ने क्या समझा कि शी डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन अदर्स, शी हैड नो इंडिपेंडेंस। देखो स्टोरी का स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था ना इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या? वो आज़ादी कि इनकलाब जिंदाबाद नहीं, वो वाला आज़ादी नहीं। यहाँ पे इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, कि उनको भी पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, तब जाके शी वुड बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसके पहले तक शी इज डिपेंडेंट। ठीक है, शी इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन अदर्स। अदर्स मतलब यहाँ पे सुधा मूर्ति जी, ऑफ कोर्स ना, क्योंकि अगर सुधा मूर्ति जी नहीं आएंगी तो उनको स्टोरी पढ़ के कौन देगा, और तो कोई देगा नहीं, तो इसलिए शी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर, ऑन सुधा मूर्ति। दैट इज व्हाई शी इज फीलिंग डिपेंडेंट एंड शी हैड नो इंडिपेंडेंस। फिर एंड विदाउट एजुकेशन अ पर्सन फील्स वीक। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग अ स्टोरी, इट बिकेम अ क्वेश्चन। ठीक है, कि विदाउट एजुकेशन, ठीक है, बिना एजुकेशन का पर्सन इज हेल्पलेस। ठीक है, बिना एजुकेशन का अ पर्सन फील हेल्पलेस, अ पर्सन फील्स कंप्लीटली लॉस्ट एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट। ठीक है, सो देन दिस वाजंट जस्ट अ क्वेश्चन अबाउट रीडिंग। ठीक है, this was not just a question about reading a story, it became a question of dignity, self respect and freedom. ठीक है, this was not just a question of dignity, this was not just a question about reading a story. ठीक है, ये बस एक स्टोरी के लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि इंडिपेंडेंट बनना है या कुछ बनना है। दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ अ डिग्निटी। ठीक है, खुददारी,
उनको मतलब खुददारी चाहिए था, ठीक है। शी वॉन्टेड टू फील इंडिपेंडेंट, कि उनको किसी के ऊपर भी बोझ बन के नहीं रहना था कि कोई उनको स्टोरी पढ़ के देगा तभी वो पढ़ पाएंगी, नहीं। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ अ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, ठीक है। आत्मसम्मान और फ्रीडम का ये क्वेश्चन था। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये स्लाइड एक बार देख लो, समझ में आया ही होगा सबको आई गेस। चलो अब आते हैं पार्ट 3, द ग्रैंड मदर्स डिसीजन, ठीक है। चलो अब आते हैं पार्ट 3 पे, द ग्रैंड मदर्स डिसीजन। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स डिसीजन? When the narrator returned, she saw her grandmother upset. The grandmother explained her feelings. ठीक है, जब नरेटर दूसरे गांव से वापस आती हैं, so she saw her grandmother upset. The grandmother explained her feelings. ठीक है, कि जब वो गांव गई थी, दूसरे गांव शादी अटेंड करने गई थी, so what incidents happened to her grandmother? Her grandmother defined everything and explained every feeling to her granddaughter. ठीक है, सुधा मूर्ति जी को उन्होंने हर एक अपना फीलिंग एक्सप्लेन किया, जाहिर किया। देन क्या होता है कि she made a important decision. Then she made a important decision. What was the important decision? This is the most important thing. What is the important decision? The important decision is she would learn to read and write even though she was 62 years old. बहुत important है ये. What was her age? She was 62 years old. ठीक है, she refused to remain dependent. Okay, she refused to remain dependent in spite of the fact that she was 62 years old, but still she wanted to read, she wanted to write. This was her important decision. कि वो चाहती थी कि now she wants to be completely independent and she wants to read, she wants to write. ठीक है, in spite of her age, in spite of what society says to her, उनको पढ़ना लिखना था. She wanted to be educated. ठीक है बेटा, समझ में आया? दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है, एंड द ओनली इंपॉर्टेंट डिसीजन इन हर लाइफ, ठीक है। दिस मोमेंट इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। दिस इज द मोमेंट विच इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर। क्यों? बिकॉज मेनी पीपल थिंक ओल्ड एज इज टू लेट फॉर लर्निंग, बट द ग्रैंडमदर चैलेंज दिस बिलीव। शी प्रूव्ड लर्निंग हैज नो एज लिमिट, ठीक है। क्या बताता है ये मोमेंट? ठीक है, ये मोमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इस चैप्टर के लिए? व्हाई इज दिस मोमेंट द हार्ट ऑफ द चैप्टर? बिकॉज मेनी पीपल थिंक ओल्ड एज इज टू लेट फॉर लर्निंग, बट द ग्रैंडमदर चैलेंज दिस बिलीव। ठीक है, बहुत लोग ये मानते हैं कि ओल्ड एज इज जस्ट ओल्ड एज इज टू लेट फॉर लर्निंग। ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं कि बुढ़ापे में लोग कुछ सीख नहीं पाते, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते। ठीक है, देयर थिंकिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सुधा मूर्ति जी की ग्रैंडमदर ने इस बिलीफ को चैलेंज किया था कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो मेनी पीपल थिंक ओल्ड एज इज टू लेट फॉर लर्निंग, बट द ग्रैंडमदर चैलेंज दिस बिलीफ। वो जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने इस बिलीफ को चैलेंज करके दिखाया। कैसे? शी प्रूव्ड, व्हाट डिड शी प्रूव्ड? शी प्रूव्ड लर्निंग हैज नो एज लिमिट। ठीक है, उन्होंने क्या प्रूव किया कि लर्निंग हैज नो एज लिमिट। ठीक है, आप किसी भी एज में सीख सकते हो, आप कैसे भी करके सीख सकते हो। लर्निंग हैज नो एज लिमिट। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो पार्ट 4, द ग्रैंड डॉटर बिकम्स द टीचर। ठीक है, अब देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग की जिंदगी में क्या है? एक गुरु चाहिए हम लोग को जिंदगी में। ठीक है, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी समझने के लिए हम लोग को जिंदगी में एक गुरु का जरूरत होता ही है। एक गुरु, एक टीचर का जरूरत होता ही है। ठीक है, सो देन हर ग्रैंड डॉटर बिकम्स द टीचर। ठीक है, उनकी जो ग्रैंड डॉटर होती है, दैट ग्रैंड डॉटर बिकम्स द टीचर। तो अब आगे बढ़ते हैं इस पार्ट पे। ठीक है, द ग्रैंडमदर रिक्वेस्टेड, विल यू टीच मी। ठीक है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अफेक्शनेट वे में उसकी ग्रैंडमदर पूछती है कि विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगी ये वाला स्टोरी, मतलब कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ ये वाला स्टोरी नहीं, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट इन जनरल, कन्नड़ा। ठीक है, कन्नड़ा कैसे सिखाना है, कन्नड़ा कैसे समझना है। ठीक है, सो देन विल यू टीच मी। द नरेटर अग्रीड हैप्पीली। नाउ रोल्स चेंज्ड। ठीक है,
नरेटर ऑब्वियसली बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर ली ये वाला पार्ट, बिकॉज द नरेटर अग्रीड हैप्पीली एज शी हैड love and affection for her grandmother, so she agreed happily. Now roles changed. The granddaughter became the teacher and the grandmother became the student. ठीक है, अब क्या होता है ना, रोल बदल जाता है, क्योंकि हम लोग की सोसाइटी में हम लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ हम लोग जो हम लोग से उम्र में बड़ा होता है हम लोग सिर्फ उससे सीख सकते हैं, जो उम्र में छोटा होता है हम लोग उससे कुछ सीख नहीं सकते, ऐसा हम लोग की सोसाइटी में एक बिलीफ होता है. ठीक है, बट इस स्टोरी में वो रोल चेंज हो जाता है. क्यों? बिकॉज जो ग्रैंड डॉटर होती है वो उम्र में छोटी होती है, बट शी बिकेम द टीचर ऑफ हर ग्रैंड मदर. ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर जो उम्र में बड़ी होती है, बट स्टिल द ग्रैंड डॉटर बिकम्स द टीचर. ठीक है, द नरेटर टॉट हर ग्रैंड मदर कन्नड़ा अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस एंड रीडिंग प्रैक्टिस. ठीक है, कि उनकी जो ग्रैंड मदर जो ग्रैंड डॉटर होती है, ग्रैंड डॉटर उनको क्या क्या सिखाती है, क्या क्या समझाती है. कन्नड़ा अल्फाबेट, ठीक है, जैसे हिंदी में होता है ना क ख ग ABCD, इंग्लिश में होता है, सो वैसे ही कन्नड़ा अल्फाबेट सिखाती है उसकी ग्रैंड डॉटर उनको. ठीक है, देन कन्नड़ा वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड रीडिंग प्रैक्टिस, के लिखना और पढ़ना साथ में साइमल्टेनियसली वो सिखाती है कि कैसे पढ़ना होता है, कैसे लिखना होता है, ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, तो बेसिकली सब कुछ सिखाती है. ठीक है, देन द ग्रैंडमदर प्रैक्टिस्ड डेली, वर्क वेरी हार्ड, remained disciplined and never gave up. ठीक है, this is very important. ठीक है, क्योंकि देखो जब तुमको कुछ चीज सच में चाहिए होता है ना, when you really truly want something, truly want to achieve something ना, you become very hard working. ठीक है, तुम्हारे कितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तुम्हारे जिंदगी में कितने भी डिस्कम्फर्ट आ सकती है, लेकिन यू बिकम वेरी डिटरमाइंड, यू बिकम वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड. ठीक है, कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज अचीव करना है, मतलब करना ही है. ठीक है, सो देन व्हाट हैपेंस, देन शी यूज्ड टू प्रैक्टिस डेली, वर्कड वेरी हार्ड एंड शी यूज्ड टू प्रैक्टिस डेली, वर्कड वेरी हार्ड एंड रिमेन डिसिप्लिन्ड. ठीक है, एंड रिमेन डिसिप्लिन. सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब हम लोगों को चाहिए होता है ना, फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू गेट डिसिप्लिन. ठीक है, विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं हो सकता. तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू इंप्रूव इन आवर सेल्फ इज डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. कि जब हम लोगों को कुछ चीज चाहिए होता है तो हम लोगों को खुद को उसके तरीके से मतलब चेंज कर लेना होता है. वी नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, वी नीड टू प्रैक्टिस इवन हार्डर एवरी डे. ठीक है, देन शी नेवर गिव अप. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड नेवर गिव अप. कितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कितने भी परेशानियां आ सकती है, बट वी शुड नेवर गिव अप. ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा सबको. एक बार देख लो स्लाइड. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पार्ट 5 द क्लाइमैक्स. ठीक है, अब आता है पार्ट 5. नाउ कम्स द क्लाइमैक्स. ठीक है, देखो अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट. ट्विस्ट आ ही चुका था, बस अब एंड होने वाला है. ठीक है, क्या? आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस द ग्रैंडमदर फाइनली लर्न टू रीड. दिस हैपेंड ड्यूरिंग सरस्वती पूजा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी एग्जाम के लिए. ठीक है, कि आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस द ग्रैंडमदर फाइनली लर्न टू रीड. ठीक है, बहुत महीनों की प्रैक्टिस के बाद, बहुत महीनों के स्ट्रगल के बाद, हार्डवर्क के बाद, the grandmother finally learned to read. This happened during Saraswati Puja. ठीक है, this happened during Saraswati Puja. क्यों? Why Saraswati Puja? देखो, Saraswati Puja is associated with wisdom, learning, knowledge and education. हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में सरस्वती माँ जो होती हैं उनको हम लोग ज्ञान की देवी मानते हैं. ठीक है, ज्ञान की, देन विजडम की, देन नॉलेज की देवी मानते हैं हम लोग. सो दैट इज द रीजन कि सरस्वती पूजा के दिन ही इस स्टोरी को रिजेंबल किया जा रहा है, क्योंकि सरस्वती पूजा एसोसिएटेड विद विजडम, लर्निंग, नॉलेज एंड एजुकेशन. ठीक है, ये 4 पार्ट्स स्टोरी के मेन बेस हैं. ठीक है, इसीलिए सरस्वती पूजा को एम्फसाइज किया जा रहा है, सरस्वती पूजा को मेनली बताया जा रहा है. ठीक है, देन ऑन दैट डे द ग्रैंडमदर रेड काशी यात्री इंडिपेंडेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, सरस्वती पूजा के दिन ही द ग्रैंडमदर रेड काशी यात्री इंडिपेंडेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, उस दिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी रेड काशी यात्री, हर फेवरेट स्टोरी, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट टू इंडिपेंडेंटली. ठीक है, देन दिस वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड,
विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। ठीक है, दिस वॉज द मोमेंट ऑफ प्राइड, विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। क्योंकि प्राइड क्यों? प्राइड इन द सेंस मतलब कि उनको अपने आप पे गर्व हो रहा था। प्राइड मतलब उनको खुद पे गर्व हो रहा था, खुद पे नाज हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना मतलब जो गोल था उसको अचीव किया। सो देन शी वॉज फीलिंग वेरी प्राइड, ठीक है, वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ। देन विक्ट्री, ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा चीज जो अचीव किया था तो शी वुड फील विक्टोरियस। एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो होगा ही, क्योंकि अगर हम लोग इतने दिनों से कुछ चीज को पाने का कोशिश कर रहे हैं और फाइनली हमको वो चीज मिल जाती है, देन वी फील वेरी हैप्पी as expected, as we should feel। ठीक है, so then these were the feelings she was feeling। ठीक है, the grandmother was feeling। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, the most emotional scene, ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी। क्या कि the most emotional scene, what is the most emotional scene? The grandmother touched her granddaughter's feet। ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल सीन है, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस मतलब बहुत ही दिल को छू जाने वाला सीन है। क्यों? क्योंकि इस सीन में क्या होता है कि जो सुधा मूर्ति की ग्रैंडमदर होती है, शी टचेस हर ग्रैंड डॉटर्स फीट। अब देखो, हिंदू कल्चर में या किसी भी कल्चर में बड़ों को हमेशा छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए, और जो उम्र में छोटे होते हैं उनको बड़ों के सामने पैर छूना चाहिए। ठीक है, बाउ डाउन करना चाहिए, अपने सर को नीचे झुकाना चाहिए, एंड we should take blessings from our elders। ठीक है, but in this scene grandmother touches her granddaughter's feet। क्यों? क्यों ऐसा क्यों है? but here the grandmother touches the granddaughter's feet because she considered her teacher। देखो, हिंदुइज्म में ना हम लोग, हिंदुइज्म में क्या, हम लोग हमेशा अपने टीचर का स्थान सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, कि दुनिया में सबसे बड़ा स्थान होता है टीचर का, भगवान से भी बड़ा स्थान होता है गुरु का। ठीक है, गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग गुरु के पैर पहले छूते हैं। माँ बाप से भी पहले हम लोग गुरु का पैर छूते हैं, क्योंकि वी कीप देम एट दैट पोजीशन इन आवर लाइफ। ठीक है, इसी के चलते क्या होता है कि शी कंसिडर्ड हर टीचर, मतलब सुधा मूर्ति की जो ग्रैंडमदर थी, उनकी ग्रैंडमदर ने सुधा मूर्ति को अपना टीचर कंसिडर किया था। ठीक है, तो इसीलिए वो उसका पैर छूती है। दिस शोज रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन, रिस्पेक्ट फॉर टीचर। ये दो चीज शो करता है। कौन सा दो चीज? दो चीज ये कि फर्स्ट रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट, एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर, कि अपने टीचर के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट। अगर आपका ये दो चीज है, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर, सेकेंड इज रिस्पेक्ट फॉर योर एजुकेशन। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। Now comes the central theme of the chapter. So what is the central theme of the chapter? First is importance of education। ठीक है, first theme is importance of education, कि एजुकेशन हम लोग की जिंदगी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन हम लोग की जिंदगी में। ठीक है, देन एज इज नो बैरियर टू लर्निंग। ठीक है, कि एज हो जाने पे हम लोग कुछ सीख नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते, ये जस्ट एक मिथ है, ये बहुत ही झूठा बात है। ठीक है, बहुत ही झूठा बात है, क्योंकि एज हो जाने पे भी हम लोग सीख सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो, अगर हम लोग के अंदर वो डिटर्मिनेशन हुआ तो। देन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि आत्मसम्मान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के जिंदगी में। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान किसी के जिंदगी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस स्टोरी के थ्रू हम लोग वो समझ सकते हैं। ठीक है, देन लव बिटवीन जनरेशंस एंड टीचर्स इंपॉर्टेंस, के किसी के जिंदगी में टीचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, किसी के जिंदगी में टीचर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, हम लोग इस स्टोरी के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, एंड लव बिटवीन जनरेशंस, मतलब ग्रैंडमदर का जो जनरेशन था और ग्रैंड डॉटर का जो जनरेशन था, इन दोनों जनरेशंस के बीच में लव, अफेक्शन। ठीक है, हम लोग को भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी हम लोग से बहुत प्यार है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? तो वही प्यार के बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ कम्स कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडमदर। ठीक है, ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच क्या था? शी वॉज डिटरमाइंड, हार्डवर्किंग, शी वॉज डिटरमाइंड, हार्डवर्किंग, humble, emotional and self-respecting. She had 5 qualities. ठीक है, which 5 qualities?
फर्स्ट इज डिटरमाइंड, शी वॉज वेरी डिटरमाइंड, देन शी वॉज वेरी हम्बल, ठीक है, शी वॉज वेरी हम्बल, शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग को पता चलता है कि वो कितने मेहनत करते हैं अपने सीखने पे, देन शी वॉज वेरी इमोशनल, ठीक है, शी वॉज वेरी इमोशनल एंड शी वॉज सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ठीक है, उनके अंदर वो आत्मसम्मान वाला फीलिंग था, ठीक है। चलो ये होता है ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच, ठीक है, कि शी वॉज डिटरमाइंड, हार्डवर्किंग, हम्बल, इमोशनल एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर। नरेटर मतलब फिर से चलो बताता हूं मैं, नरेटर मतलब कौन, गेस करो, नहीं गेस नहीं, अब तक तो पता हो ही जाना चाहिए, सुधा मूर्ति जी, ठीक है, इसमें नरेटर है सुधा मूर्ति जी, ठीक है। तो इसमें सुधा मूर्ति जी का कैरेक्टर स्केच बताया गया है क्या, कि शी इज केयरिंग, पेशेंट, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कि शी इज केयरिंग, फर्स्ट शी इज केयरिंग बिकॉज शी केयर्ड अबाउट हर ग्रैंडमदर, शी यूज टू हेल्प हर ग्रैंडमदर व्हेन शी कुड नॉट रीड, जब उनकी ग्रैंडमदर पढ़ नहीं पाती थी, शी यूज टू रीड द स्टोरीज टू हर ग्रैंडमदर, ठीक है। देन शी वॉज पेशेंट, बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही शांत दिमाग से वो अपने ग्रैंडमदर को पढ़ाती थी, समझाती थी, ठीक है। देन शी वॉज रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल, शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑल्सो टुवर्ड्स हर ग्रैंडमदर, ठीक है, एंड शी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो टुवर्ड्स हर ग्रैंडमदर, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने ग्रैंडमदर को सिखाती थी कि हर एक छोटा से छोटा माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स वो अपने ग्रैंडमदर को सिखाना चाहती थी, ताकि क्या हो कि उसकी ग्रैंडमदर को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना आ जाए। सो शी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है, शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। तो ये है कैरेक्टर स्केच ग्रैंड डॉटर का, यानी सुधा मूर्ति जी का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो जी, तो यहाँ पे हम लोग का स्टोरी होता है खत्म, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पूरा समझ में आया हो, नहीं आया हो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखो, समझो स्टोरी को, बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक है। बट फॉर नाउ लेट्स बिगिन विद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब शुरू करते हैं फ्रॉम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस पे आते हैं। फर्स्ट, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर डिपेंड ऑन द नरेटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ग्रैंडमदर डिपेंड ऑन द नरेटर, बताओ। एग्जैक्टली बिकॉज शी वॉज इलिटरेट, एज हम लोग को पता ही है, शी वॉज इलिटरेट एंड कुड नॉट रीड द मैगजीन हरसेल्फ, ठीक है, शी वॉज इलिटरेट एंड कुड नॉट रीड द मैगजीन हरसेल्फ, दैट इज व्हाई द ग्रैंडमदर वॉज डिपेंडेंट ऑन द नरेटर, ठीक है। देन व्हाई डिड द grandmother feel sad during the narrator's absence? Because she could not read the next episode of काशी यात्री, ठीक है, उनको उनके लिए कोई था नहीं जो उनको वो काशी यात्री पढ़ के दे, और उनको खुद को भी पढ़ना नहीं आता था, that is the reason she was sad, ठीक है। Then what realization changed the grandmother's life? Yes, she realized that illiteracy made her dependent on others, ठीक है, कि she realized that illiteracy made her dependent on others, के अगर वो illiterate होंगी तो then she would have been dependent on her grandmother or to someone else to read the story, to understand the story, ठीक है। तो इसीलिए she wanted to be independent by being literate, ठीक है। Then last question, why did the grandmother touch the granddaughter's feet या touch the narrator's feet? ऐसा तो हम लोग को पता ही है, अभी जस्ट पढ़ाया, बिकॉज शी कंसिडर्ड हर ग्रैंड डॉटर हर टीचर, ठीक है, बिकॉज शी कंसिडर्ड हर ग्रैंड डॉटर एज अ टीचर, ठीक है, इसीलिए शी टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट, ठीक है। समझ में आ गया सबको? एक बार ये देख लो, एक बार अच्छे से देख लो सब, ठीक है, जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, ठीक है, हो गया सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे, बस 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द ग्रैंडमदर प्रूव्ड द डिटर्मिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एज, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द ग्रैंडमदर प्रूव्ड द डिटर्मिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एज, कैसे किया उन्होंने प्रूव इस चीज को? चलो, द ग्रैंडमदर वाज 62 years old, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, के शी वाज
62 years old, yet she decided to learn reading and writing. She practiced daily with discipline and patience. Her strong willpower helped her overcome illiteracy. Finally, she learned to read independently. Her success proves that learning is possible at any age if determination is strong. ठीक है, सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, कि उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन कैसे प्रूव किया कि इन स्पाइट ऑफ हर एज 62 इयर्स के होने के बावजूद उन्होंने पढ़ा. ठीक है, उन्होंने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा. दिस शोड हर डिटर्मिनेशन. ठीक है, एंड विच इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव्स अबाउट एजुकेशन. क्या मैसेज देता है? द स्टोरी टीचर्स दैट एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी. Illiteracy creates helplessness and dependence. Education gives confidence, freedom, and self-respect. The story also teaches that age is not a barrier to learning. ठीक है, स्टोरी का मेन थीम, मेन बेस यही होता है. ठीक है, समझ में आया सबको? चलो, with this I complete the chapter. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए. ठीक है, I really hope आपके एग्जाम्स में ये वीडियो आपकी हेल्प करे. Thank you everyone. Thank you.